اب یہاں جس واقعہ کا ذکر ہے آیت نمبر 18 سورہ النمل، ایک چیونٹی کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں جی، آج گفتگو جو ہوگی اس میں یہ واقعہ مکمل شاید بیان نہ ہو پائے، ٹائم ہو جائے گا، جتنا واقعہ پھر بیان ہو سکا آیت ہم پڑھتے ہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، نمل کا معنی تو آپ سب کو آتا ہوگا نا، نمل کا معنی کیا ہے جی؟ چیونٹی۔ اسی نمل کے لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ النمل۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ بول لیا کریں، سورۃ النمل، سورۃ النمل کہا گیا اسے۔ نمل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک چیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑی عظیم بات ہے کہ چیونٹی کے نام پر اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا ہے۔ سورۃ النمل کا معنی بھلا کیا بنے گا؟ کرے معنی اس کا معنی بنے گا چیونٹی والی سورت۔ او سورت جس سورت میں چیونٹی دی گل ہے، تے چیونٹی جڑی گل کیتی ہے اللہ نے او گل قرآن دے وچ بیان فرمائی ہے۔ گل چیونٹی پہ کر دی ہے تے چیونٹی دی گل نو رب پیا بیان کردا ہے۔ بھئی چیونٹی نے اے گل کیتی تے چیونٹی دی جڑی گل سی او پھر اللہ دا کلام بن گیا۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ چیونٹی کا کلام کلام الہی بن گیا۔ اب سمجھ آئی ہے کہ اب بھی نہیں آئی؟ چیونٹی کا کلام کلام الہی بن گیا۔ چیونٹی نے کیا کوئی عجیب بات کر دی کہ اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ چیونٹی کے کلام کو رب نے اپنا کلام بنا دیا۔ نہ صرف اپنا کلام بنا دیا بلکہ قرآن کے اندر اس کلام کو رکھ دیا۔ اور اب اس چیونٹی کی بات کو، چیونٹی تو پتہ نہیں دنیا سے جا چکی ہوگی، دنیا میں زندہ تو نہیں ہوگی چیونٹی، لیکن قیامت تک اس چیونٹی نے جو بات کہی ہے وہ بات لوگ پڑھتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، اس کی بات کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ ایک چیونٹی کو بھی اللہ نے اتنی شہرت عطا فرما دی کہ قیامت تک اس چیونٹی کے تذکرے ہوتے رہیں گے، اور چیونٹی والی سورت کہہ کے لوگ پکارتے رہیں گے سورۃ النمل۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یا طائف کی طرف سفر کر رہے تھے یا ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے، طائف یا پھر ملک شام، ان دونوں میں سے کسی ایک علاقے کی طرف آپ کا سفر تھا۔ اور جب آپ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے، اذا اتوا علی واد النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں سمیت چیونٹیوں کی وادی کے قریب سے گزرے، ابھی آپ کا لشکر، آپ خود اور آپ کا لشکر 3 میل کے فاصلے پر تھے، آپ خود بھی اور آپ کے لشکر بھی 3 میل کی دوری پر تھے۔ 3 میل کی دوری سے جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، چیونٹیوں کی سردار تھی، چیونٹیوں کی ملکہ نے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ 3 میل کی دوری سے چیونٹی نے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان اور آپ کا لشکر اور آپ کے لاؤ لشکر آ رہے ہیں۔ تو چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا، قالت نملتن، چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کہیں کچل نہ ڈالیں، تمہیں کہیں روند نہ ڈالیں۔ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لشکر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں پتہ نہ چلے۔ اب یہاں چیونٹی ایک بڑی عجیب بات کر رہی ہے۔ چیونٹی ہو کر اسے یہ پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یا آپ کے لشکر جان بوجھ کر ہمیں نہیں کچلیں گے،
जान बूझ कर हमें नहीं रोन देंगे, क्योंकि पैगंबर और उस पैगंबर की रियाया, बादशाह और उस बादशाह की रियाया में से कोई भी जालिम नहीं है। चींटी कह रही है, चींटी कह रही है कि पैगंबर भी किसी पे जुल्म नहीं करते और पैगंबर के मानने वाले भी किसी पे जुल्म नहीं करते। अगर हमें वो कुचलेंगे, बेखबरी में कुचलेंगे, जानबूझ के कुचलना उनकी शान नहीं है। हो सकता है कि जब वो इस वादी के पास से गुजरे जिसमें हम हैं, तो शायद उनकी तवज्जो हमारी तरफ ना हो, उनका ध्यान हमारी तरफ ना हो, वो जमीन पे नीचे देखें ना और बेखबरी में बगैर इरादे के हम कहीं उनके कदमों के नीचे ना आ जाएं। जानबूझ के तो वो हमें अपने कदमों के नीचे नहीं देंगे, अगर देख लेंगे तो फिर तो हमें बचा लेंगे। नुक्ता काबिल गौर है, अगर वो देख लेंगे तो फिर हमें बचा लेंगे, फिर हमें नहीं मारेंगे। अगर उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम बच जाएंगी, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम बच जाएंगी। अगर उनकी नजर हमारे ऊपर ना पड़ी तो हम फिर कुचले जाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम अपनी हिफाजत खुद ही कर लें, अपना बंदोबस्त खुद ही कर लें, अपने आप को बचाने की फिक्र खुद ही कर लें। कबल अज वक्त हम अपने आप को बचा लें। चींटियों की सरदार कह रही है, चींटियों की मलका चींटियों से कह रही है, ऐ चींटियों बच जाओ, दाखिल हो जाओ, अपनी बिलों में चली जाओ, अपने घरों में चली जाओ। दो बातें यहाँ बड़ी खास इंतहाई तवज्जो तलब हैं। एक ये बात कि चींटी भी पैगंबर का अदब कर रही है, न सिर्फ पैगंबर का अदब बल्कि पैगंबर के उम्मतियों का भी अदब कर रही है। जी, पैगंबर के उम्मतियों का भी अदब, क्योंकि जितने लाओ लश्कर थे वो सारे के सारे हजरत सुलेमान की क्या बने, उम्मती बने। जिन्नों का भी अदब हो रहा है जी, अदब, इंसानों का भी अदब, जानवरों का भी अदब। चींटी जानवरों का अदब कर रही है और चींटी परिंदों का अदब कर रही है, इंसानों का, जिन्नों का, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अदब कर रही है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की उस चींटी को यह बात पता थी कि पैगंबर की शान में बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करते, मगर आज के इस मुल्ला को, आज के इस मुलवाने को, आज के इस अल्लामे को यह नहीं पता कि पैगंबर की शान का आलम क्या है। चींटी होकर वो कह रही है अगर वो कुचलेंगे तो बेखबरी में कुचलेंगे, जानबूझकर तो वो किसी पर जुल्म नहीं करते। ये अदब है भाई, कुछ अदब की समझ आ रही है। लिहाजा हमें भी जब पैगंबर के बारे में चींटी ने बताया, अब देखें ना चींटी की बात को रब ने क्यों पसंद फरमाया, ये भी आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? क्योंकि चींटी ने बताया कि पैगंबर का अदब करो, पैगंबर के बारे में जुबान खोलो तो एहतियात के साथ जुबान खोलो कि तुम्हारी जुबान से कहीं पैगंबर की शान में बेअदबी ना हो जाए। अगर तुम्हारी जुबान से पैगंबर की शान में कोई बेअदबी या गुस्ताखी हो जाएगी तो फिर याद रखो तुम्हारा एक भी अमल बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह तुम्हारे हर नेक अमल पर नाकबूलियत का कलम, अल्लाह तुम्हारे अमल को मकबूल नहीं फरमाएगा, मरदूद फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारे अमल को रद्द कर देगा और तुम्हारे अमल को रद्द करते हुए अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। सो पैगंबर के बारे में जुबान खोलनी है तो अदब के साथ जुबान खोलो। ये बात समझाई चींटी ने। फिर चींटी ने ही ये बात भी समझा दी कि चींटी होकर वो चींटियों का अगर उनकी जान की फिक्र कर रही है, उनकी जान की परवाह कर रही है, उनकी जान की हिफाजत कर रही है, तो चींटी ने बताया कि तुम इंसानों को भी चाहिए कि तुम भी इंसानों की जान की फिक्र करो। अगर चींटी होकर वो चींटियों की जान बचाने की बात कर रही है
तो अगर हम इंसान होकर दूसरे इंसानों को बचाने की बजाय दूसरे इंसानों को मारने की बात करें, तो क्या हम उस चींटी से भी गए गुजरे नहीं हो जाएंगे? हमसे अफजल तो वो चींटी हो गई। कुछ समझ आई कि नहीं आई? इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर हर इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है। वो इंसान अशरफुल मखलूकात हैं जो इंसान अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो चलते हैं तो वो जानवरों से भी बदतर हैं, उनसे अफजल तो जानवर हैं। ये चींटी होकर चींटियों की जान की फिक्र कर रही है, और आज हम इंसान किसी को चलता देख नहीं सकते, किसी को खाता देख नहीं सकते। हम तो इस इंतजार में हैं कि मरता कब है, ये जान क्यों नहीं छोड़ता, ये मरे जान छोड़े, मट्टी में जाए, कब्र में जाए। जब किसी पर मुसीबत आती है हमें बड़ी खुशी होती है, और जब किसी को खुशी मिलती है हम तो उसके ऊपर वावेला कर रहे होते हैं। हमें बड़ी तकलीफ होती है कि इसे खुशी क्यों मिली है। हम इंसान होकर दूसरे को उठाने की बात नहीं करते, गिराने की बात करते हैं। दूसरे को खड़ा करने की बात नहीं करते, उसकी टांगें खींचने की बात करते हैं कि इसकी टांगें खींचो, इसे जमीन पे गिराओ। गिरता क्यों नहीं है? अल्लाह ने उस चींटी की बात को पसंद फरमाया है। क्यों पसंद फरमाया है? क्योंकि चींटी होकर चींटियों की फिक्र कर रही है। कुछ समझ आई कि नहीं आई? चींटी होकर चींटियों की फिक्र कर रही है। और इस चींटियों की बात को एक चींटी ने बाकी चींटियों से कहा। अब देखे ना, चींटी सारी चींटियों से बात कर रही है तो सारी चींटियों तक बात पहुंच गई और सारी चींटियां अपने अपने घरों में दाखिल हो गईं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਚਿਉਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਚਿਉਂਟੀ इधर गल कर रही है चींटियां नाल। बस मैं यहां बात खत्म करने लगा हूं। चींटी बात कर रही है चींटियों के साथ, और चींटी की बात को 3 मील की दूरी पर जनाबे हजरत सुलेमान सुन रहे हैं। गल कीड़ी कीती कीड़ियां नाल। गल किन्ने कीती? तुसी ना बोलना, मैं कीड़ी दी गल कर रहा, तुसी ना बोलना। गल कीती कीड़ी ने कीड़ियां नाल ते सुन लई हजरत सुलेमान ने। ना सिर्फ सुनी बल्कि ए अगे हुण सुनो, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। जनाबे सुलेमान ने, क्या हुकूमत है सुलेमान की, हवाएं आवाज पहुंचा रही हैं। कौन आवाज पहुंचा रही है? चींटियां बात करें तो हम बात सुनना तो दूर की बात समझ भी नहीं सकते, समझना तो दूर की बात सुन भी नहीं सकते, मगर हवाएं हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत है, और हवाएं चींटियों की बातों को हजरत सुलेमान के कानों तक पहुंचा रही हैं। हवाएं कह रही हैं, हवाएं बात पहुंचा रही हैं। और अगर पैगंबर बात को सुनता है और बात को सुन के हंसता है और बात को सुन के मुस्कुराता है, पैगंबर भी खुश हुए ना। हजरत सुलेमान भी बोलो क्या हुए? खुश हुए। क्यों खुश हुए? हजरत सुलेमान ने खुश होकर बताया, चींटिए जींदी रवे, तन बाकी चींटियां दी जान दी बड़ी फिक्र है। जूंदी रवे तन बाकी चींटियां दी जान दी बड़ी फिक्र है। इसका मतलब यह है दूसरों की जान की परवाह करनी चाहिए, दूसरों की जान की फिक्र करनी चाहिए। और अगर चींटी की बात पैगंबर सुन रहे हैं 3 मील की दूरी पर, अब जो इस पैगंबर के भी इमाम हैं और जो कुल सारे पैगंबरों के भी इमाम हैं, हुजूर इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुजूर का मुक्तदी सुलेमान चींटी की बात को 3 मील की दूरी से सुन सकता है तो मानना पड़ेगा कि सुलेमान के इमाम जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों मील की दूरी से अपने उम्मती का सलातो सलाम भी सुन सकते हैं।
वमा अलैना।